الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عالی وقار، عزت مآب، سید القوم، شیخ المشائخ، فیضان معرفت، آل علی، اولاد نبی، علامہ الحاج الشاہ، پیر طریقت، رہبر شریعت، فیضان معرفت، گل گلزار اشرفیت، یعنی حضرت علامہ الحاج الشاہ سید انوار اشرف صاحب قبلہ عرف مصنع میاں دامت برکاتہم القدسیہ، فقیہ اسلام، مدبر قوم، اولاد رسول، حضرت علامہ مفتی سید خلیق اشرف صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، وہ اسٹیج پہ تشریف فرما سادات کرام، علماء کرام، ائمہ کرام، سامعین محترم، ہم عمر دوستو، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، دور و نزدیک سے سننے والی ایمانی رشتے کی پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بچیوں، کچھ عرض و معروض سے قبل بارگاہ نبوت و رسالت میں عقیدت مندی کے ساتھ ایک بار بآواز بلند درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ آج ہم اور آپ قبلہ اول بیت المقدس کے تحفظ کے سلسلے میں ہونے والی اس عظیم کانفرنس میں شریک ہیں، جس میں آپ نے جماعت اہل سنت کے ممتاز عالم دین حضرت علامہ مفتی عبدالستار صاحب قبلہ، شیخ الحدیث دارالعلوم قادریہ سے آپ نے ایک معرکۃ الآراء تقریر سماعت کی۔ اس تاریخ ساز تقریر کے بعد چند لمحے کے لیے جماعت اہل سنت کے عظیم سرمایہ سید القوم، فقیہ اسلام، مدبر قوم حضرت علامہ مفتی سید خلیق اشرف صاحب قبلہ، جن سے آپ نے ایک نہایت علمی، معلوماتی، مختصر اور جامع تقریر سماعت کی۔ دو نعتیں بھی آپ نے سماعت کی، ایک عزیزم حافظ غفران صلی اللہ علیہ وسلم سے
دوسری نعت جناب صدر محترم سے. اب تو طلب اتنی بڑھ گئی کہ جن جلسوں میں میں تقریر کے لیے جاؤں صدر صاحب اسی میں نعت پڑھنے کے لیے چلیں. اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے. حضرات، یہ عجیب ایک مسئلہ ہے. کچھ سکون شانتی دیں تو میں اس کو آپ کے ذہن میں رکھوں. دنیا کی 4 چیزیں مشہور اور حق ہیں جن کا دنیا اب تک جواب پیش نہ کر سکی. اور یہی 4 مظلوم ہیں. اسلام ایسا مذہب کہ جس کا جواب کوئی مذہب نہ پیش کر سکا. قرآن ایسی مقدس کتاب کی جس کا جواب کوئی رائٹر اور لیکھر 30 پارہ تو الگ ایک آیت کا بھی نہ پیش کر سکا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کعبے کے صدر گیٹ پر پیغمبر اعظم نے ایک آیت نصب کر دی. جس میں ہمت ہو وہ آئے. اگر یہ شاعری ہے تو گرہ لگا جائے، سمجھ میں آ جائے تو دوسرا شعر کہہ دے، یا ایک آیت کا جواب ایک آیت پیش کر دے. یہ آج کے پڑھے لکھے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، 1500 سال پہلے کی کر رہا ہوں. ہر آنے والا ادیب آیا دیکھا سر جھکایا چل دیا. ہر آنے والا مفکر آیا دیکھا سر جھکایا چل دیا. آخر آنے والا یہی نیچے نشان لگایا کہ آدمی کا کلام ہو تو جواب دیا جائے، رب کے کلام کا کیا جواب ہے؟ حضرات، اگر اس طرح آپ داڑھی اور منہ ہلائیں گے تب تو گاڑی نہیں چلے. لب کھولیے، سب کی مت بولیے، رب کی بولی بولیے. اب اگر آپ بیدار ہیں تو سنیے. وہ قرآن 1500 سال پہلے جس نے ساری زبانوں کو لاجواب کیا، اور آج تک ہر کتاب کا جواب کوئی نہ کوئی کتاب آپ کو ملے گی، لیکن قرآن وہ لاجواب کتاب ہے کہ جس کا جواب نہ کل تھا نہ آج ہے، نہ رہتی دنیا تک کوئی جواب دے سکے گا. حضرات، یہ الہیہ قانون اور قانونی کتاب ہے. کتنے جرم ہو سکتے ہیں دنیا میں، ان سارے جرموں پہ کون کون سے دفعہ لگیں گے، اور دفعہ لگنے کے بعد وہ کس کیٹیگری کا مجرم ہوگا، علاوہ قرآن کے کسی کتاب میں آپ نہیں پائیں گے. کیسی کیسی نیکیاں کر کے کیسے کیسے لوگ ہوں گے، اس جزا کی جگہ بتانے کے لیے قرآن سے بہتر کوئی رہنمائی کرنے والی کتاب نہیں ہے. اسلام وہ جس کا مذہبوں میں جواب نہیں، جس کا لوہا سب مانے. قرآن وہ اس ساری کتابیں جس کی تقدس کا خطبہ پڑھے. سارے نبیوں میں اور سارے رسولوں میں لاجواب اور بے مثال آمینہ کے لال، جنہیں لاجواب اور بے مثال
दुनिया का जर्रा जर्रा बोले। और इन तीनों के मानने वाले लोग, मानने वाली कौम जिसका नाम मुसलमान है, सारी कौमों में इस कौम का जवाब नहीं। ये चार लाजवाब चीजें हैं, और जब जब दुनिया ने आंख उठाई है तो हमला इन चारों ही पर किया है। या तो मुसलमान पे किया है, या तो कुरान पे किया है, या तो मुस्तफा की अजमतों पे किया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन हमलों के बजाय अगर इन चारों को अपनाने के लिए ये कौम बढ़ती तो दुनिया में कोई काफिर नाम की चीज नहीं रह जाती। हर कुफ्र और हर शिर्क के किले को जो गिरा दे उसी का नाम कुरान है। हजरात, कभी कभी दुश्मन ऐसा होता जिसका चेहरा देखने के काबिल नहीं होता। इसी कुरान पर उमर फारूक ने भी हमला किया था, लेकिन कुरान ने उनके चेहरे को मुड़ के देखा तो वो बच न सकी, तलवार गिरी और सीने में कुरान पहुंचा। और कुछ ऐसे मनहूस चेहरे हैं कि जिसको इस्लाम ने हमेशा निगलेक्ट किया है। अब कभी कभी आप भी महसूस करते होंगे कि आज कल सैकड़ों बरस पीछे जब इसी पे हमले होते रहे, सबकी नजर हम ही पर है, तो और भी तो दुनिया में मजहब हैं, उनका कोई विरोधी क्यों नहीं? और भी तो किताबें हैं, उनका कोई बागी क्यों नहीं? और भी तो कौमें हैं, उनका कोई दुश्मन क्यों नहीं? तो मैं कहूंगा हजरात, ये आदमी नुमा शैतान भी दुश्मन है और ओरिजिनल शैतान भी दुश्मन है, और ये सब आप ही के हैं, और किसी का कोई दुश्मन नहीं, सब आपस में दोस्त हैं। इसकी वजह क्या है? गुलाब के दुश्मन आपको मिलेंगे, गुलाब ले जाना हो तो डाली काटेंगे, फूल बड़ा करना हो तो झाड़ देंगे, कली लेनी हो तो कली तोड़ लेंगे, फूल लेना हो तो फूल तोड़ लेंगे। लेकिन अगर वहीं एक कांटे का पेड़ खड़ा हो तो उस बबूल के पास कोई खड़ा नहीं होगा। हजरात, एक मालदार के घर में नकब भी, मालदार का इगवा भी, मालदार पे हसद भी, लेकिन वहीं अगर एक फटीचर लेटा हो तो उसका कोई दुश्मन नहीं। एक गामा रन में खड़ा होकर रोस्तम होने का ऐलान करे, जिसके दाव पेच के मुकाबले पर किसी का दाव पेच न हो, तो सारे जवान उसी के विरोध में जवान बनेंगे और शहर का सारा बादाम उनके पेट में हजम हो जाएगा। दूध पिएंगे, दूध से नहाएंगे कि कब इसे हम गिरावें। लेकिन अगर वही कोई हाथ पांव से उठने के काबिल न हो तो उसका कोई दुश्मन नहीं, उसके लिए एक गिलास कोई पानी भी नहीं पिएगा। हजरात, हम यहां से खूब आसानी से समझ गए, और हम दुनिया के नजरियात को भी समझते हैं, और अपने बारे में हम ये फख्र भी करते हैं कि हम गरीब हैं। लेकिन गरीबी मेयार का नाम नहीं है, मेयार का नाम ईमान है। सुभान अल्लाह। ये सारे मजहब और सारी कौमें जो आंखें फोड़ के देख रही हैं, हम इन्हें कांटे बबूल कहते हैं, और अपनी कौमी जिंदगी को हम गुलाब का फूल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन ये भी याद रखिए, जिस पेड़ पे फल नहीं होता उसका कोई दुश्मन नहीं होता। आम पर अगर एक भी फल ना हो तो कोई दुश्मन नहीं। जैसे ही आम पे फूल आएंगे
छोटे छोटे बच्चे उसे आजमाएंगे, ऐसे ही नमक लगा के खाएंगे। छोटे छोटे अगर उसके टिकोरे हो जाएं, छोटी कैरी तो पैंतरे बदल के जाएंगे, डेले चलाएंगे। कुछ दाने बड़े हो जाएं तो कुछ बड़े बड़े लड़के जाएंगे, चटनी के काम में आएगा। और अगर कुछ और साइज अच्छा हो जाए तो अच्छे अच्छे आएंगे कि अचार के काम में आएगा। और अगर फुल साइज हो जाए तो पकने से पहले तोड़वा लेंगे कि कार्बेट लगा करके इसे शहर में लाया जाए, महंगे भाव से बिक जाए। और जब सब फल गिर जाएगा तो कोई उधर देखने वाला नहीं, न कोई डाली चलाने वाला। यहूदियों मातम करो, तुम पर कोई देखने वाला नहीं है। नसारा तुमको कोई देखने वाला नहीं है। अंग्रेजों तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है। यही तो वो फलदार कौम है कि जिसे देखो डेला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, हमारे मुकद्दस मकामात जब जब गए हैं तो ये हमारा ही कसूर है। काबे को ढाने के लिए अबरहा चला था, बड़ी लंबी फौज लेके चला था, जमीन से लेके फिजाओं तक धूल ही धूल। आती हुई फौज को जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जानवरों ने देखा तो सबकी रस्सियां टूट गईं और सब भाग पड़े। आप अपने जानवरों को ढूंढते हुए अबराहा की फौज में दाखिल हो गए। अटैक किया कि आप कौन हैं? कहा मैं काबे का मुतवल्ली हूं। कहा हम काबा ढाने जा रहे हैं और आप यहां खड़े हैं। कहा हम अपना जानवर ढूंढने आए, हमारे जानवर तुम्हारे जानवरों में मिल गए हैं, हम इन्हें ढूंढने आए। अबराहा लगा माथा पीटने, जो आप जिसके आप मुतवल्ली हो, जो आपकी हिफाजत में हो, हम उसे गिराने जा रहे हैं और आप बजाय बचाने के अपना जानवर ढूंढने आ रहे हैं। तो आपने फरमाया जानवर मेरा है, ढूंढना हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, और जिसे ढाने जा रहे हो खुदा का घर है, उसकी बचाने की खुदा की जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेके हजरात पूरे गुरूर के साथ चला। ख्यालात देखिए, आपने देखा खुद किनारे हो गए कि मौला अब तू और ये तेरा दुश्मन। अब्दुल मुत्तलिब तमाशाई नातुमा हाथ हैं, मैं ऐसा नहीं कि इससे टकरा सकूं। हजरात वो साइड हुए, खुदा की रहमतों का जलवा देखिए और अबराहा की फौज पर खुदा का जलाल देखिए। अल्लाह ने फील के मुकाबले पर सबसे छोटा परिंदा अबाबील को उतारा। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताकि ये फील देखें कि अबाबील क्या है। और कहा कि अब तुम्हें कोई बम बारूद नहीं लेना है, न कोई अगिन बाण लेना है। अपने अपने चोंचों में एक एक पत्थर उठा लो। हजरात ये ठीक मिसाइल की तरह परिंदा है, उड़े, इधर फील उधर अबाबील। और जब हाथी के ऊपर डालने लगे तो बगैर बारूद के हाथी धंसने लगे। क्या बात है, जिस सर पे पड़े सर फटने लगा। वो चीखो पुकार जो काबा ढाने आया था वो खुद ढह गया, काबे का फतह का परचम लहर गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े बैतुल मुक़द्दस कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान। एक रुख तो ये है कि खुदा का घर है वो बचाए। आपने देखा किस तरह अल्लाह ने अपने घर को बचा लिया, हमेशा हमेश के लिए। अबरहा जैसी ताकतें उसी तारीख को देखती रहीं और कभी उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़े। मेरे आका के जमाने में अब अबरहा नाम का कोई नहीं, मनात तो उज्जा नाम के, ये बशर नहीं हजर
आदमी नहीं पत्थर, एक दो नहीं 360 काबे के कल्ब पर विराजमान हुए। अब रब के महबूब चले, सबके महबूब चले, दानाए गुयूब चले, हादिये सुबुल चले, खत्मुर रसूल चले, मक्की सरदार चले, दोनों आलम के मुख्तार चले, महबूबे परवरदिगार चले। हजरात वो जा रहे हैं जिनके कपड़ों पे पेबंद, वो जा रहे हैं जिनके जूते टके हुए हैं, वो जा रहे हैं जिनके पेट पे पत्थर बंधे हैं, वो जा रहे हैं जिनके पास न कोई वीर, न जिनके तरकश में कोई तीर, न जिनके हाथ में तलवार, न कोई साथ में फौज, न कोई सिपह सालार। चले जा रहे हैं अकेले अहमद मुख्तार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे के सदर गेट पे जैसे ही खड़े हुए, खड़ा होना था, निदा आना था, कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, सुभान अल्लाह, इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सुभान अल्लाह। जरा जोर लगाओ। एक तेवर ये देखिए, क्या बात, खड़े हैं और मुक़द्दस ज़ात खड़ी है, कायनात के आका खड़े हैं, मुअल्लिमे कायनात खड़े हैं, जिनके दर की दरबानी जिब्रील करें वो रसूले अमीन खड़े हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़ा होते ही जो बुत बैठे थे गिर पड़े, हरकत भी नहीं की, इशारा भी नहीं की, देखते ही गिर पड़े। हक आ गया, हक आ गया, बातिल को मिटना ही था। क्या बात, वो गिरते गए, नबी कान पकड़ पकड़ के बाहर फेंकते गए। वाह, क्या बात है। अड़ते तब तो लड़ते, अड़ते तब लड़ते, देखते ही गिर गए तो गिरे से लड़े कौन। खाली करो, एक एक को बाहर फेंका। तुम्हारे बाप का घर नहीं, खुदाए पाक का घर है। सुभान अल्लाह। जब तक रहोगे ये झुकने के काबिल नहीं होगा, और जब निकल जाओगे तो ये झुकने के काबिल होगा। हजरात, आपने बाहर किया, ये दोनों जिंदगी और ये दोनों तारीखें हमारे सामने हैं। अब आया बैतुल मुक़द्दस का मसला। तो अगर मेरी आवाज 45 मुल्कों तक पहुंचती तो मैं उन्हें कह देता कि दोनों में किसी पे अमल कर लो, दोनों में किसी पे अमल कर लो। तुम ऊंट वाले नहीं हो कि अब्दुल मुत्तलिब पे अमल करोगे, तुम मोहम्मद वाले हो, घुसो और इन यहूदियों का कान पकड़ पकड़ के बाहर करो। सुभान अल्लाह। और फलस्तीनी जवानों, बच्चों, हम तुम्हारे जज्बात का एहतराम करते हैं। बेशक हम अपना खून तुम्हारे लिए हर वक्त अतिया लिए खड़े हैं। बेशक हमारी एक मुल्की मजबूरी है, वरना इन यहूदियों को ये देखने को मिल जाता कि मखदूम अशरफ और गरीब नवाज, गौसे आजम और आला हजरत के दीवाने होते कैसे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ बैतुल मुक़द्दस कॉन्फ्रेंस, अल्लामा कारी रज़ीउल्लाह साहब चतुर्वेदी, सादाते किराम, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़िबला हमारा है, क़िबला हमारा था, क़िबला हमारा रहेगा। सारी दुनिया की ताकत अगर सामने आ जाए तो हम उन ताकतों से दबने वाले नहीं हैं। हमारी तहरीक का मेयार पहले बढ़ के जुल्म के पंजों को तोड़ना है, आंखों में आंखें डाल के यहूदियों की आंखें फोड़ना है। और ये खामोशी कहां से हुई है? पूरी सऊदी पेट्रोलियम ताकत वहीं मौजूद है और क्यों तमाशाई है। हजरात, जब अकीदा खराब होता है तो ब्लड खराब होता है और आदमी में तनखापन पैदा होती है। ये ताली पीटने से कभी सरहदों सीमा की हिफाजत नहीं होती है।
सरहद और सीमा की हिफाजत करने वाली ये सऊदी कौम नहीं है जो यहूदियों की आंखों में आंखें डाले। अगर वो लोग जो सहराओं में और पहाड़ों में पुराने शुयूख जिनके रगों में अरब का खून शामिल है, अगर आज वो सामने होते तो मुझे ये जुमला कहने की जरूरत न होती। लेकिन ये शाह सऊद जैसे डाकू की औलादें हैं, एक डाकू की औलाद 100 साल भी अपने खून की रिफाइनरी कराता रहे और अपने खून को रिफाइनरी फैक्ट्रियों में पहुंचाती रहे, तो कहां तक इसका खून साफ होगा जब खानदानी ही खून खराब है। तो दोस्तों, हम बैतुल मुक़द्दस के लिए उसकी आजादी के खातिर जंग और जिहाद करने वाले उन फलस्तीनी मुजाहिदों के कदम ब कदम है, शाना बाशाना है। और ए अल्लाह, तो गैब से वो फिर अबाबिल को उतार कि अमेरिका जैसी ताकत को अबाबिल फिर अपने चोंचों से कंकरियां मारे और इनको निस्तो नाबूद कर दे। आमीन। अब मैं उस कुरान करीम की आयत पाक के करीब पहुंच जाऊं। मैं चूंकि इस वक्त मुकम्मल इस टॉपिक और मौजू पे खड़ा नहीं हूं, वरना मैं मुकम्मल बोलता तो फिर तारीख आपके सामने ले आता। बस एक बात कहूं कि जिस तरह चमन में गुलाब का पौधा है, ऐसे ही दुनिया में ये दीवाने रसूल हैं। कांटे से कोई कौम घटती नहीं है, जलाए से कोई दुकान जलती नहीं है। थ्योरी यह है कि जब जंगलों में कीड़े घुस जाएं तो वहां का फारिस्ट का इंतजाम यह होता है कि आग लगा दो, जो सूखी लकड़ियां हैं जल जाएं, जो जंगल में फैले जरासीम हैं वो मर जाएं। तो जंगल में आग लगाने का मतलब जंगल को वीरान करना नहीं होता है, बीमारियों से बचाना होता है। तो आज अगर फलस्तीनी हुए चाहे इंडियन हुए, अगर हमारे घरों में हमारी दुकानों में आग लगाई जाती है तो हम उसको अपने गुनाह ही समझते हैं और जरासीम ही समझते हैं। और दुकान अगर छोटी सी जलती है तो 40 दिन के बाद बड़ी अच्छी दुकान बन जाती है। फिर आप आइए जरा सा उस पौधे के करीब। चमन के राजा का नाम है गुलाब। जो सबसे ज्यादा आदमी को पसंद आए वो है गुलाब का फूल। इस वक्त जो सबकी आंखों में खटके वो है गुलाम रसूल। हजरात, ये पौधे कटते ही चले गए, घर घर बढ़ते ही चले गए। अगर इस झाड़ को शहर भर भेजना हो तो बेदर्दी से काटिए। कटने से इसके फूल छोटे नहीं होंगे और कलम हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे। अब बरकत ये होगी कि घर घर चले जाएंगे। हजरात, इससे ज्यादा तलवारें क्या चलेंगी। करबला में एक ही तो औलादे रसूल बचा, बाकी सारे खूनों से होली खेली गई, सारे लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए, लेकिन एक ज़ैनुल आबिदीन की बरकत और फैज का ये आलम है कि पूरी दुनिया में जहां देखिए औलादे रसूल मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे रसूल, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कांटे से नहीं घटती। हजरात, अब आइए एक और नजीर पेश करूं। प्यारे हुजूर का एक पौधा खजूर है। बिहारी लोग आसानी से समझ जाएंगे, बंगाली भी समझ जाएंगे, यूपी वालों के लिए थोड़ी सी दुश्वारी होगी। जब वो इतना बड़ा होता है नीम बालिग, तो रामविलास पासवान की कौम सीधे हथियार लेके उसके पास आती है। इसकी गर्दन सही हुई है कि नहीं, अब फिर गर्दन ही पे हमला करती है वो, और एक डब्बा लगा देती है इसी में जिसकी सप्लाई लालू प्रसाद के पास दिल्ली तक होती है। पीते रहिए, इसी के सहारे जीते रहिए।
पूरे सूबे में गुंडागर्दी करते रहिए। हजरात, आप कभी आंखों से देखिए उस पौधे को, एक साल अगर दाएं से छाटा गया तो दूसरे साल उसे छोड़ दिया जाएगा कि अपना जिधर पनपा है उधर छाटा गया। आप देखिए, अगर 10-20 साल का पेड़ है तो 10-20 घाव उसकी गर्दन पे लगे होंगे, मगर बल खाता हुआ वो अपनी जगह हरा भरा है। तो इस तरह की सऊदी यहूदी छांटे बहुत हमारे साथ रहे। बाजू कटे फिर भी हम बल खाए, गर्दन कटी फिर भी बल खाए, खून खींचा गया फिर भी बल खाए, कमर टूटी फिर भी बल खाए, टांगे टूटी फिर भी बल खाए। तो जिस तरह इलाके हुजूर का खुजूर काटे नहीं मिटता है, ऐसे ही गुलामे हुजूर भी काटे नहीं मिटता है। आप ऐसी हरकतों पे मायूस न होइए। एक तहरीक ये भी चलेगी, ये सबसे कमजोर कौम है। मैं कहता हूं जी नहीं, हम ही तो सबसे अच्छी कौम है। अगर अच्छे ना होते तो सबकी नजर हम पे क्यों होती? हिंदुस्तान में रहें तब भी शैतान पीछा हमारा करे, मस्जिद में जाएं तब भी पीछा करे, सलाम पढ़ें तब भी पीछा करे, कयाम करें तब भी पीछा करे, पीरे तरीकत का हाथ चूमे तब भी पीछा करे, इनसे बैरत हो तब भी पीछा करे, मैयत बन के चले तब भी पीछा करे, अगर कब्र में दफन हो तब भी पीछा करे, हजरात नमाज पढ़े तब भी पीछा करे, काबे में तवाफ करे तब भी पीछा करे। नहीं है कि देखो शैतान इन्हीं के पीछे है, हमारे करीब कभी आता नहीं। तो मैं कहूंगा जी हाँ, वो पहचानता है दुश्मन भी और अपना भी। जिससे उसको डर है उसी के पीछे पड़ा रहता है, और जिससे वो बेखौफ है कि ये सब मेरी ही औलादे हैं, उनके पीछे क्यों? हजरात, अब इन चंद जुमलों के बाद मैं अब आ जाऊं उस आयत पाक के करीब। रब का ऐलान, वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलऊन इन कुंतुम मुमिनीन। कामयाबी तुम्हारे लिए, कामरानी तुम्हारे लिए। ये कौन कौम है जिसके लिए रब कहे कामयाबी तुम्हारे लिए, कामरानी तुम्हारे लिए? ये वो कौम है कि जिसके लब पे जारी है ला इलाहा इल्लल्लाह, और जिसकी दिल की आवाज है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो खाने खुदा में सर देने वाली है और नबी के मोहब्बत में दिल देने वाली है। कामयाबी तुम्हारे ही लिए। हजरात, जमीन पर से नारा लग रहा है, कुर्सी फिसल लगता तो कुछ ऊपर तक आता। जो लगावे तो वो जवान आदमी हो कि जिसकी आवाज में कुछ दम हो। अब नारे भी बूढ़े हो गए हैं। सुभान अल्लाह। हजरात, इतना जल्दी हिंदुस्तान मुतासिर क्यों होता है और हिंदुस्तान का मुसलमान मुतासिर क्यों होता है? लड़ाई हो रही है फलस्तीन में, मुकाबले पे अंग्रेज है, रूप उसने इसराइल को दिया है। हजरात, खिंजीर के मुख्तलिफ रंग हैं। एक रंग इसराइल है और उसका बड़ा खिंजीर वो अंग्रेज हैं। लड़ाई वहां, गम यहां, मरे उनके बेटे, तड़पे मेरे बेटे। चूंकि हम मजलूम थे, मजलूम हैं, हम पर जुल्म होता आया है, हम जरा देर में मजलूम को महसूस कर लेते हैं, और जिन पर ये वक्त आया ही नहीं वो क्या महसूस करेंगे। और क़िबले अव्वल मस्जिद अक्सा सिर्फ उन्हीं फलस्तीनी जवानों का नहीं है, पूरे आलम के मुसलमानों का है। अगर यही मेयार मुकर्रर हो जाए
कि सारे यहूदी एक तरफ और सारे मुसलमान एक तरफ और फिर सरहदों सीमा तोड़ दिया जाए तो फिर अमेरिका देख ले कि मैदान का जलवा क्या होगा। फिर यही शेर आप कहेंगे, तन्हे थे लेकिन हजारों में चमके और चमक क्या चमक है बहारों में चमके। तारीख पढ़िए, ये कभी हमसे मोर्चा नहीं जीते हैं, हर मोर्चे पर ये शिकस्त खाए हैं। मैं अब इनकी शिकस्त सुना दूं। हजरत उमर फारूक बनफ्से नफीस मोर्चे पे तशरीफ ले गए। आपने फरमाया, जवानों 7 दिन से घमासान जंग हो रही है और अब तक मेरे कान तरस गए कामयाबी सुनने के लिए। कौन सी वो कमी है तुम में जिससे हमारी कामयाबी रुकी है? रब इरशाद फरमाए, वइज़ा अरादा अल्लाहु बिक़ौमिन सुअन फला मरद्द लहु वमा लहु मिन दूनिही मिन वाल वल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़ खौफ़न व तमअन व युनशिउस सहाबा सिक़ाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बंदा नेक इरादा करके आगे बढ़ता है तो मेरी रहमतें उसे आगोश में ले लेती। सुभान अल्लाह। मैं बादलों की गरज उसके साथ कर देता, बिजली की तड़प उसके साथ कर देता, हवाएं उसके लिए हमवार कर देता। ये सारी चीजें जब हमारे लिए हमवार, हमारी मदद में हैं, तो आखिर वजह क्या है कि हमारी फतह अब तक न हुई और 7 दिन से घमासान की जंग हो रही है, न कामयाब होने की वजह क्या है? ऐ लोगों, जरा अपने अपने गिरहबान में निगाह डालो और जरा देखो तो सारे के सारे मुसलमान हथियार अपना रोक दिए और लगे देखने। आपने फरमाया, ऐसे मसले का हल नहीं होगा। क्या तुम में कोई ऐसा है जो चोरी का कपड़ा पहन के मैदान में खड़ा हो? सबने कहा हम में कोई ऐसा चोर नहीं। कहा क्या तुम में कोई ऐसा है जो अपने माँ बाप को नाराज किया हो? सबने कहा कि हम मुसलमान हैं, अपने माँ बाप को नाराज करने वाले नहीं हैं, अपने माँ के कदमों के नीचे जन्नत समझने वाले हैं। क्या तुम में कोई ऐसा है जो किसी यतीम का हक मारा हो? सब बोल पड़े कि हम हक मारने वाले नहीं हैं। जिसका हक मार दिया गया हो हम हक दिलाने वाले हैं। हमारी तलवार किसी के तख्त के लिए नहीं निकलती, हमारी तलवारें जब जब निकली हैं तो जुल्म को मिटाने के लिए निकली हैं, परचम इंसाफ लहराने के लिए निकली हैं। कहा तो आखिर हमारी कामयाबी कहाँ है? तुम में कोई ऐसा तो नहीं जिसकी नमाज छूटती हो? सबकी तरफ से आवाज आई, हम में ऐसा कोई नहीं। कहा कहीं ऐसा तो नहीं इन जमात तो जमात जिसकी तकबीर उला छूटी हो? सबने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, हमसे तकबीर उला भी नहीं छूटी। कहा जब चारों तरफ से जिंदगी लैस है तो हमारी कामयाबी है कहाँ? ए अल्लाह, फरमान तेरा है, कामयाबी तुम्हारे लिए, कामरानी तुम्हारे लिए, तो आखिर हमारी कामयाबी है कहाँ? हजरात, उमर फारूक वो उम्र है जो अपनी कामयाबी तलाश रहे। जब चारों तरफ से जिंदगी हमारी लैस है तो कामयाबी कहाँ है? फिर थोड़ी देर के बाद आपने कहा फिर देखो, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुम करीब। आखिर ये आसमान से पैगाम कब आएगा? ये पैगाम हमारे लिए है, अब तक आया क्यों नहीं? एक बूढ़े साहब उठ के खड़े हुए, उन्होंने कहा हुजूर, अगर हमसे कोई चीज छूटी है तो एक दिन घमासान की जंग हुई, दफाई मोर्चा संभाले, बेदर्दी से हमला था और थके हारे ज्यादा थे, सो गए, वक्त कम था, उठे, किसी ने मिसवाक नहीं किया, वुजू की और नमाज के लिए खड़े हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी सुन्नत की वजह से हमारी कामयाबी रुकी हो? हजरत उमर फारूक ने फरमाया, नबी की किसी सुन्नत को छोटी मत समझो, उठो,
जिसको छोड़े हो उसे अदा करो, उसके बाद जंग होगी। हजरात, दुश्मन की फौज ये यहूदी ही थे, देख रहे थे। आपने ऐलान किया जो जवान हैं वो पेड़ों पे चढ़ें, डालियां झुकाएं, जो बूढ़े हैं वो तोड़ें, जो कमजोर हैं उनको दें, पहले मिसवाक करें फिर मूर्छे पे आवें। हजरात, ये डाली टूटने लगी, पेड़ों पे लोग चढ़ गए, दांत से दबाने लगे। यहूदियों का कैप्टन कहता है सावधान, होशियार, इस कौम को खाना नहीं मिला है, ये कौम पागल हो गई है। अब तक ये तलवार तेज करती थी, अब दांतों में धार लगा रही है। अगर करीब पहुंच गए तो घूंटियां नोच लेगी और जद में आ गए तो गर्दनें उड़ा देंगी। जल्दी से अब पीछे हटो, पागल हो गई है ये कौम। मौका रहा तो फिर दोबारा समझेंगे, लेकिन आज हट जाओ, आ गए हैं उमर। अगर ललकार दिया तो उम्र भर हम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। क्या बात। धीरे धीरे भागने लगे हजरात, धीरे धीरे भागने लगे। इधर मिसवाक का काम खत्म हुआ, वजू की नमाज पढ़ी, उमर फारूक ने, अमीरुल मोमिनीन ने दुआए कामयाबी की और फिर आपने परचम अपने हाथ में ली, कहा आगे बढ़ो। नक्कारे जंग बजा, कोई जवाबी नक्कारा नहीं, नारा लगा, जवाबी नारा नहीं, आगे बढ़े। पहली चौकी खाली, कब्जा कर लिया, दूसरी चौकी खाली, कब्जा कर लिया, तीसरी चौकी खाली, कब्जा कर लिया। किले पे चढ़े, किले में कोई नहीं, झंडा उतारा, परचमे इस्लाम लहराया और इरशाद फरमाई, रब का शुक्रिया का सजदा करने के लिए सफे सीधी कर लो। ऐ लोगों, देखा तुमने, जब कामयाबियां रुक जाएं तो सर उठा के मत देखो, अपने गिरहबान में सर डाल के देखो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ बैतुल मुक़द्दस कॉन्फ्रेंस, आले रसूल, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, आज सऊदियों को चाहिए कि वो अपने गिरहबान में निगाह डालें और देखें कि कितना माल हराम के खाए हैं, कितना लोगों का मार के खाए हैं। आखिर वजह क्या है कि उनमें जोश नहीं आ रहा है? किसी घर के का मामला होता तो बात और होती, खुदा के घर का मसला है और ये खुदा के बंदे हैं। तो जानते हो ये दफाई मोर्चा कौन संभालेगा? जो नबी की सुन्नतों पे चलने वाला सुन्नी होगा। अब आइए जरा एक मोर्चा और सुनाऊं आपको, सुनेंगे? ऐसा तो नहीं कि रज़ीउल्लाह की सुनने के लिए तैयार हैं। इस वक्त जो हो रहा है सुनिए। हजरत साद इब्न वक्कास, मैं उस सहाबी रसूल के पास खड़ा हो गया। सरकारे दो आलम के वेसाल के बाद जब इनको सहाबा ने हुक्म दिया कि आप नमाज पढ़ाएं, जुमा में जब ये खड़े हुए, मजबूत दिल के थे, इसलिए कहा गया पहला जुमा आप पढ़ाएं। खड़े हुए, कुल दो आयतें पढ़ी, आंखों से आंसू बहने लगे, पांव कांपने लगे। सैयदना उमर फारूक उठ के खड़े हुए, कहा इसलिए नहीं खड़ा किया है कि आप रोएं, नमाज पढ़ाइए। कहा है उमर, रोऊं क्यों नहीं? जो हाथ में आसा है ये भी रो रहा है, जो मिंबर है वो भी रो रहा है कि कल मुझ पर मेरे आका के कदम और आज गुलाम का कदम। कल मैं अपने आका के हाथों की जीनत और आज गुलाम के हाथों की जीनत। तो मैं चारों तरफ देख रहा हूं तो दरो दीवार रो रहे हैं। मैं उस आंख वाले का नाम ले रहा हूं जिसकी आंख इतनी तेज हो, जिसका कान इतना तेज हो कि लकड़ियों के रोने को सुन ले, आंख वो जो रोने को देख। सुभान अल्लाह। हजरत साद इब्न वक्कास रात के सन्नाटे में पैगंबर जा रहे हैं, चारों तरफ से साहबा का एक गोल। कभी कभी हजरत साद आगे चले जाएं, कभी कभी आके दाहिने बाजू से लग के चलें, कभी कभी बाएं बाजू से लग के चलें, कभी कभी पीछे हो जाएं। इनकी इस हरकत को देखा हजरत उमर फारूक को बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने म्यान से तलवार निकाली और चाहा कि झपट के इन्हें पकड़ लूं और इनकी गर्दन उड़ा दूं।
जब तक साहबा ने घेर लिया, कहा उमर उनकी गलती, कहा देख नहीं रहे हो ये मेरे आका के आगे चल रहा है, ये आका से बाजू मिला के चल रहा है, कभी दाएं कभी बाएं चल रहा है। हजरत नबी के बराबर एक सहाबी चले तो एक सहाबी बर्दाश्त न करे, और नबी के बराबर होने का एक वहाबी दावा करे तो सारे सुन्नी बर्दाश्त कर ले। तलवार म्यान से बाहर लोगों ने घेरा। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि उमर आखिर कत्ल की वजह क्या है? कहा या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरी जिंदगी आपके कदमे नाज पे कुर्बान, मैं इसलिए पैदा नहीं हुआ हूँ कि आपके बराबर कोई चले, उसे यही बराबर कर दूंगा। इसमें हिम्मत, कलमा पढ़े और बाजू से बाजू मिला के चले, ये आगे चल रहा है। हजरत साद की आंखों में आंसू आ गए, कदमे रसूल पकड़ के लिपट गए। कहा या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की इस तरह की मेरे दिल में कोई बात नहीं, कोई भावना नहीं। मैं आगे इसलिए गया था कि मेरे दिल में खतरा पैदा हुआ कि रात के सन्नाटे में कोई दुश्मन अगर किसी झाड़ से वार कर दे तो मेरे आका का सीना बच जाए, मेरा सीना छिद जाए। बाजू पे बाजू रख के इसलिए चला था, वो मेरे दिल का डर था कि कहीं कोई दुश्मन रात के सन्नाटे में तलवार फेंक के मेरे आका का बाजू न काट ले। तो मैं खड़ा था कि मेरा बाजू कट जाए, आका का बाजू बच जाए। वो साद इब्ने वक़ास 25,000 फौज लेकर के आगे बढ़े, किसरा के किले पे फतह कर दी है। किसरा ने 1,25,000 फौज उतारी। हजरात ये वही कौम है जो आज फलस्तीनियों से उलझी है। क्या बात, 1,25,000 उधर और कुल 25,000 इधर। जब उनकी भीड़ देखें तो ये घबराएं कि वो अक्सरियत में है, हम अकलियत में हैं। हजरत साद इब्ने वक़ास फरमाते हैं कि न घबराओ, काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन तो बेलाती हिलाता है सिपाही। वो तलवार देख के लड़ रहे हैं, तुम नबी का किरदार देख के लड़ो, खड़े हो, दफाई मोर्चा संभालो। हजरात फौजें टिक गई और आपने फरमाई वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अग़लाऊन इन कुंतुम मुमिनीन। रब ने वादा फरमा ली है, कामयाबियां हमारे लिए, कामरानियां हमारे लिए। सुभान अल्लाह। सफे सीधी हो गई। अब नक्कारे जंग बजने वाला था। उसी में से एक नौजवान निकला जिसको देख के हर आदमी का दिल मजबूत हो गया कि ये बड़ा बहादुर है, बड़ा पैतरेबाज है। 25,000 से एक जवान निकला, देख के सबके नजरियात बुलंद हो गए। कामयाबी इंशाअल्लाह मिलेगी। हम अपने बाजुओं से अगर नहीं कामयाब होंगे तो इस नौजवान के बाजुओं से कामयाब होंगे। हजरात अब नक्कारा बजने वाला है, दोनों तरफ से अब फौज टकराने वाली थी, जब तक उस नौजवान ने शराब की एक बाटली निकाली, तोड़ी, पीना शुरू किया। पी के बदमस्त हुआ। बजाय नक्कारा बजने के सबने अपने हथियार जमीन पे डाल दिए। कहा अमीर लश्कर, हम शराबी के साथ जिहाद नहीं करेंगे। अभी नजरियात देखिए, सबके नजरियात ये थे कि फातेह यही होगा, और अभी मुसलमानों के ईमानी नजरियात ये हैं कि हम इसके साथ जिहाद नहीं करेंगे। हम शराब और हराम के खिलाफ जिहाद करने वाले, और हम ही अगर पिए तो तलवार चलाने से फायदा क्या होगा। पहले इन्हें गिरफ्तार किया जाए। हजरात जंग रोक दी गई, पहले इन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वाले का नाम अबू महजन था। हाथ पांव बांध के खेमे में रख दिया गया। 25,000 लोग नक्कारा बजते ही रन पे उतरे। 1,25,000 किसरा की फौज ने हमला किया। हमले की ताब न लाए, पांव उखड़ गए, भगदड़ मच गई। कोई कहीं भागा, कोई कहीं भागा। गाजरों मूली की तरह कटने लगे। अब ये बंधा हुआ तड़प रहा है,
काश ये हरकत न किया होता तो तारीख में ये दिन देखने को नहीं मिलता। अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, मूर्छा संभालूं तो संभालूं कैसे। जब तक हजरत साद इब्ने वक्कास की बीवी सामने आई तो चीख के कहता है माँ 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 माँ। वो ममता भरी एक आवाज है कि साद इब्ने वक्कास की बीवी करीब आई, फरमाई बेटे बोलो, दुख क्या है, तकलीफ क्या है। रस्सियां सख्त हैं तो ढीली कर दूं। कहा माँ ऐसा कुछ नहीं, प्यासे हो पानी दे दूं। कहा ये भी नहीं, भूखे हो खाना, कहा ये भी नहीं। माँ हमें जो कुछ भूखो प्यास है मूर्छे की है, मेरी रस्सियां खोल दीजिए, मुझे तलवार दे दीजिए, घोड़ा दे दीजिए, मैदान कारजार में जाने की इजाजत दे दीजिए। आपने बड़ी आसानी से इजाजत दे दी। हाथ पांव खोला, अमीर का घोड़ा, अमीर का नेजा, अमीर की ढाल, अमीर की तलवार लेके जब घोड़े पर सवार हुआ तो कहा माँ एक मोटी चादर दे दीजिए। कहा बेटे मैदान में वो चादर, कहा मुंह कहाँ इस काबिल है कि जिसको रन के गाजी देखें, ये शराबी का चेहरा है, अब ये कैसे मुसलमान इसे देखेंगे। मैं छप के जाना नहीं चाहता हूँ, मैं छुप के जाना चाहता हूँ। हजरात जिस गुनाह को आप बड़ी आसानी से खरीद रहे हैं, इस गुनाह ने कैसे दिन हमें दिखाए हैं जरा देखिए। कहा चादर दे दीजिए, चादर लिया और मुंह ढक लिया, घोड़े पे सवार हुआ। फौज सामने लगी है, किसरा की फौज पहाड़ों से पीठ लगा के खड़ी है और ये दूर से चला, पहाड़ की चोटी पे पहुंचा। उखड़ी हुई फौज हमारी है। हजरत साद इब्ने वक्कास इरशाद फरमा रहे लोगों मत घबराओ, अल्लाह की रहमतें आने वाली हैं, अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नकाबपोश उतरने वाले हैं, अभी हमारी मदद होगी। रब ने हमें रुसवा कहीं नहीं किया है, हमें फतह दिया है। लोगों जमो, उखड़े हुए पांव जल्दी जमने को तैयार नहीं, किसी तरह से जमा के खड़ा किया और किसरा की फौज मुस्कुरा रही है कि जिसे एक हमले में हम भगा चुके हैं, अब की बार तो इन्हें निस्तो नाबूद कर देंगे। फौज इधर ये है हजरत साद की और पीठ लगाए खड़ी है किसरा की 1,24,000 और उसके पीछे पहाड़ी से धीरे धीरे अबू महजन घोड़े से उतरने लगे और जब पहाड़ों के बीच पहुंचे तो वही नारा बुलंद किया। हजरत नारे की आवाज पहाड़ों में गूंजी। हजरत साद ने कहा जवानों अपना अकीदा मजबूत कर लो, देखो वो नकाबपोश फरिश्ते अल्लाह की रहमत के पहाड़ों पे उतरने लगे। हजरत इनके हौसले बढ़ गए और इन्होंने हमला शुरू किया। इधर से इनका हमला, जब तक वो नकाबपोश पीछे से आके खड़ा होता है और 1,24,000 किसरा की फौज पे अकेले हमला कर दिया। हजरत अभी जिन आंखों ने 25,000 के पांव उखड़ते देखे थे, अब वही आंखें 25,000 के पांव जमते देख रही हैं। और एक नौजवान जिधर से जा रहा है इंसानियत को टुकड़े टुकड़े करता निकल रहा है, आदमी जमीन पे गिरते चले जा रहे हैं, उसकी तलवार को कोई रोक नहीं पाता। उसके दाव पैंतरों और पेच को देख के हजरत साद इब्ने वक्कास मुस्कुरा रहे हैं। ये लग रहा है ये घोड़ा मेरा है, लेकिन मेरा हो कैसे सकता, मेरा बंधा हुआ है। ये तलवार कह रही है कि मेरी है, लेकिन मेरी तलवार तो म्यान में है। ये नेजा कह रहा है कि मेरा है, लेकिन मेरा नेजा तो टंगा हुआ है। और ये जवान कह रहा है कि अबू महजन है, लेकिन वो तो बंधा हुआ है। आखिर ये है कौन? जब तक न कारा बजा के हम किसरा पे फतह कर लिए। देखते ही देखते 1,24,000 पर इस्लाम का झंडा लहराया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झंडा लहराते ही फिर अबू महजन वहीं से तेजी से भागा और फौज पकड़ पकड़ करके बांधी जा रही है। अब फिर उसी रास्ते से निकला, आके खेमे में आवाज लगाया माँ माँ। बोली हाँ बेटा। कहा अब जो तलवार जहां थी वहीं टांग दीजिए, नेजा जहां था वहीं रख दीजिए, ये घोड़ा जहां था बांध दीजिए, ये चादर जहां की है वहीं रख दीजिए, और मैं जैसा मुजरिम था मुझे वैसे ही बांध दीजिए। हजरत बंध गया। फतह के बाद
حضرت سعد ابن وقاص نے اعلان کیا کون ہے فاتح کسرا؟ آئے میں آج اسے انعام دوں گا، آج اسے برابر تول کے خیرات کروں گا۔ حضرات آج تو 8 آنا مسجد میں گر جائے اور اعلان کیجئے کس کا ہے تو ہر آدمی کہے گا میرا۔ نیزے برداشت کرنے والے اور تلوار چلانے والے اتنے سچے ہیں کہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ میں فاتح کسرا ہوں، ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے کہ فاتح کسرا ہم نہیں، وہ ایک نقاب پوش تھا، وہ جدھر سے چلا تھا بجلی بن کر، جس کے ٹاپوں کو کوئی ٹاپ روک نہ سکے۔ کہا تم میں وہ کون ہے؟ کہا ہم میں وہ کوئی نظر نہیں آتا، ادھر کی لاش ادھر، ادھر کی لاش ادھر، الٹ پلٹ ہو رہی ہے کہ دیکھا جائے ہو تب تو نظر نہیں آیا۔ تو حضرت سعد کی بیوی نے کہا حضور اگر میری جان بخشی جائے تو میں بتاؤں فاتح کسرا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا بولو۔ کہا جب آپ نے کہا تھا یہ ابو محجن تو ابو محجن تھا، آپ نے کہا یہ تلوار میری تو تلوار آپ کی تھی، یہ گھوڑا میرا تو گھوڑا آپ کا تھا۔ وقت کی نزاکت یوں تھی، میں گئی، اس نے مجھ سے فریاد کی اور جنگ میں جانے کی بھیک مانگی، میں نے بھیک دے دی اور اس طرح میں نے لیس کر کے اسے بھیجا۔ اب ساری فوج وہاں سے چل دی، ابو محجن کی طرف بندھا ہوا ہے۔ جب حضرت سعد بن وقاص آ کے کھڑے ہوئے، اب بڑھے رسی ڈھیلی کرنے، کہتا ہے حضور پہلے شرابی ہوں بعد میں غازی ہوں، پہلے شرابی بعد میں غازی، ایک شرابی کی سزا جو قرآن میں ہو وہ مجھے دیا جائے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ہے کوئی ایسا سعودیوں سے لے کر کے انڈین تم لوگوں میں اتنا پاور پانے کے بعد قرآن کی حفاظت یوں کرے، اسلام کے قانون کی حفاظت یوں کرے؟ آپ سے اسلام نہیں پھیلا ہے، ایسے پوتوں سے پھیلا ہے۔ پہلے مجھے سزا دی جائے۔ حضرت سعد بن وقاص امیر لشکر فرماتے ہیں کہ میں کن ہاتھوں سے سزا دوں؟ جن آنکھوں نے بھائی 25,000 کے پاؤں اکھڑتے دیکھے، انہی آنکھوں نے تیری ایک تلوار چلانے پہ 1,25,000 یہودیوں کو بھاگتے دیکھے اور کسرا پہ فتح کے جھنڈا لہرتے دیکھے، جس کے پیٹھ پر 1,25,000 کسرا کی فوج کوڑے نہ مار سکی ہو، میں کوڑے کیسے ماروں؟ تمہارے مقدمے کو عمر فاروق کی عدالت میں ٹرانسفر کرتا ہوں، جو وہ فیصلہ کر دیں گے وہ ہم مان لیں گے۔ اٹھتے اٹھتے ابو محجن نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے مقدمہ تو ان کی عدالت میں ٹال دیا، اب یہاں سے ان کی عدالت تک میری زندگی کی بھی گارنٹی لے لیجئے، ورنہ اگر میری موت آئی تو کل میدان محشر میں شرابیوں میں اٹھایا جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ موت کی گارنٹی کون لے گا؟ آج اگر موت کی گارنٹی نہیں تو آپ ان کی عدالت سے پہلے آپ گواہ ہو جائیے، میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں کہ پھر ایسی شراب نوشی نہیں کروں گا جس سے اسلام اور مسلمان کا دامن داغدار ہو۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ حضرات کھڑا ہو کے توبہ، توبہ کے بعد سارے لوگ گلے سے گلا لگا لیے۔ کہتا ہے حضور یہ کیا؟ کہا اسلام کا یہ آخری فیصلہ ہے کہ جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا تو اللہ اسے ایسا معاف کرتا ہے جیسے ماں کے شکم سے ابھی پیدا ہو گیا۔ آپ نے دیکھ لی کیسی کیسی جنگیں الجھی ہیں، اب کیسی کیسی فتح ہوئی ہیں۔ تو فتح و نصرت کے لیے صرف یہی نہیں ہے کہ بس ہاتھ اٹھا کے 45 ملک جمع ہو جائیں اور یہودیوں کو گالی دے کے فلسطینیوں کا دل مضبوط کر کے واپس چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کاش یہ میری آواز پہنچنے والی ہوتی تو میں ان سے کہتا کعبے کے بڑے قریب ہو آ جاؤ کعبے میں، در رسول کے بڑے قریب ہو آ جاؤ روضہ رسول پر، اور تم بھی سعودی اور صدق دل سے اللہ کے گھر میں توبہ کر لو اور نبی کو گواہ بنا کے پھر میدان میں اتر جاؤ۔ جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں جا کے ڈوبتا ہے، ہر طرف اسلام ہی کا پرچم لہرے گا۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا
وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ابھی صرف اسی میٹر پر 12:30 ہو گیا. جلسہ 12 ہی بجے تک تھا. آدھا گھنٹہ میں نے آپ کا زیادہ لے لیا، جس کے لیے میں آپ سے क्षमा چاہوں گا. اور انہی جملوں کے ساتھ میں آپ کی عافیت اور آپ کی صحت ایمانی کے لیے اپنے جملوں کو حضرت کی بارگاہ میں گواہ بنا کے گزر جاؤں کہ حضرت دعا فرما دیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے. وما علینا الا البلاغ. یہ کیلنڈر اشرفیہ کیلنڈر الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کا. سلام علیکہ یا رسول یا حبیب سلام علیکہ. آفتاب لا یزالی ماہتاب ذی کمالی. عرض کرتے ہیں سوالی جھولی رہ جائے نہ خالی. یا نبی اے شہنشاہ مدینہ ہم تمامی کا سفینہ. چیر کر موجوں کا سینہ پہنچے یا شاہ مدینہ. یا نبی یا حبیب سلام صلوات اللہ علیکہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ.